السلام علیکم ناظرین، 4 TV کشمیر میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ سونامرگ میں پیش آئے آتش زدگی واقعے پر وزیر اعلیٰ کا اظہار افسوس، تاجرین کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کا دلایا یقین۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر نے کیا سونامرگ کا دورہ، آتش زدگی سے متاثرہ تاجرین سے کی ملاقات، کہا معاوضہ ادائیگی کے لیے لیا جائے گا جلد فیصلہ۔ انتظامی تبدیلیاں لداخ سے جموں کشمیر کے رشتے کو متاثر نہیں کر سکتی، لداخی وفد سے ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ نے کیا اظہار یکجہتی۔ التجا مفتی نے کٹھوعہ میں مہلوک نوجوان کے گھر والوں سے کی ملاقات، ایس ایچ او بلاوڑ کو معطل کرنے کا کیا مطالبہ، پریس کانفرنس کی اجازت نہ ملنے پر کیا احتجاج۔ عوامی مسائل حل کرنے کی دی جائے توجہ، حکومت سے طارق حمید قرہ کا مطالبہ، پریس کانفرنس کو کیا مخاطب۔ دہلی کے نتائج نے صاف کر دیا ہے کہ ملک کی عوام بھاجپا کے ساتھ ہے، اشوک کول کا دعویٰ، سری نگر میں بی جے پی کے اجلاس میں کی شرکت۔ کشمیر کے ساتھ سخت رویے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، جیل میں انجینئر رشید کی بگڑتی صحت پر میر وائز عمر فاروق کا رد عمل۔ اور بارہمولہ کے ہدا پورہ دیہات میں محبوبہ مفتی کے قافلے کی گاڑی حادثے سے دوچار، 3 پولیس اہلکار ہوئے زخمی۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ گزشتہ روز مین مارکیٹ سونامرگ میں پیش آئے آتش زدگی واقعے پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اپنے غم و افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں ہم تمام متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہیں ہر ممکن مدد فراہم کریں گے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ ان کا دفتر اعلیٰ عہدیداروں اور مقامی انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ متاثرہ خاندانوں اور تاجرین کو راحت اور ہر ممکن مدد فراہم کی جا سکے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سماجی رابطہ سائٹ ایکس پر ایک نوٹ جاری کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام متاثرہ خاندانوں کے حق میں وہ دعا گو ہیں۔ واضح رہے، گزشتہ شام سونامرگ میں شدید ترین آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا، جس میں 40 دکانات کے بشمول دیگر املاک جل کر خاکستر ہو گئے۔ آتش زدگی کے واقعے میں کروڑوں روپے کے نقصانات کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر نے آج سونامرگ کا دورہ کرتے ہوئے یہاں پیش آئے آتش زدگی کے نقصانات کا جائزہ لیا۔ ڈویژنل کمشنر نے متاثرین سے ملاقات کی اور جلد معاوضہ جاری کرنے کا یقین دلایا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈویژنل کمشنر کشمیر وی کے بھدوری نے کہا کہ کمرشل علاقے میں بہت جلد اراضی کی نشاندہی کرتے ہوئے یہاں فائر اسٹیشن قائم کیا جائے گا۔ فائر اسٹیشن کے قیام تک یہاں 2 فائر بریگیڈ گاڑیاں ہمیشہ تعینات رکھی جائیں گی تاکہ کسی بھی طرح کی آتش زدگی کے واقعے سے نمٹا جا سکے۔ متاثرہ تاجرین کے معاوضے کی ادائیگی سے متعلق پوچھے گئے سوال پر ڈویژنل کمشنر نے کہا ہے کہ اس ضمن میں بہت جلد فیصلہ لیا جائے گا۔ لوگوں کا کافی نقصان ہوا ہے اس میں۔ اب اس میں ایک بات یہ رہی کہ لوگوں کی سمجھ بوجھ کی وجہ سے ایک تو جان کا کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا ہے، تو اس کے لیے تو ہم شکر گزار ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سب نے بہت اچھے سے اس جو ڈیزاسٹر پہ کام کیا، مارکیٹ ایسوسیشن اور یہاں کی جو انتظامیہ ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، سبھی نے اس میں جتنا ہم اسے بیسٹ کر سکتے تھے اس کو اس طرح سے کیا۔ فائر اسٹیشن کے حوالے سے یہاں پہ کیونکہ جو ویدر کی کنڈیشن کے حساب سے ابھی یہاں پہ شروع میں نہیں بنا تھا، تو اس کے لیے بھی ایک لینڈ آئیڈینٹیفائی ہم نے کی ہے اور اس کو بھی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ٹیک اپ کیا جائے گا۔ بٹ ٹیمپریری میجر کے لیے ابھی فائر ٹینڈر جو ہے
2 जो है तैनात किए जाएंगे, जेड मोड़ के पास और एक यूथ हॉस्टल के पास में। इसके अलावा और भी जो ज़रूरत है उसके लिए हमने जो है डिस्कशन कर लिया है। इसमें डायरेक्टरेट ऑफ फायर सर्विस से भी हमें सहयोग मिलेगा। दूसरा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पूरी इंतजामिया, आप देख रहे हैं माननीय एमएलए साहब भी यहाँ पे है, डीसी साहब है, एसएसपी साहब है, और सभी लोगों ने इसमें जो है बेस्ट इनके लिए जो हम कर सकते हैं वो किया है। जहाँ तक रिलीफ का ताल्लुक है तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट को हम उसमें सबमिट करने वाले हैं कि इसमें क्या इसमें हम रिलीफ इसमें प्रपोज करेंगे, उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन इसमें डिसीजन ले लेगी। इसके अलावा यहाँ की मार्केट एसोसिएशन से हमारा बहुत सारा डिस्कशन हुआ है कि इसको ऐसे इंसिडेंट्स आगे और ना हो। और आपके माध्यम से देखिए, मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब हादसा हो जाता है तब हमें समझ आती है। हमारे लिए आग जो है एक तरीके से एक दुश्मन का काम करती है ऐसे टाइम में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी आपके माध्यम से कि सभी जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, अगर वो फायर के जो इंतजाम है वो कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंश्योरेंस अपना वो करा लें, तो इस तरह की जब त्रासदी होती है तो उससे हम बच पाते हैं। तो एक फिर से हमें रिक्वेस्ट रहेगी आपके माध्यम से सभी जो हमारे कश्मीर प्रोविंस में सभी लोग हैं जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैं, इसको जरूर वो ध्यान दें, क्योंकि आज से मतलब 2 दिन पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह का हादसा हो सकता है। तो हमें हर चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए। और मैं फिर यकीन दिलाता हूँ कि पूरी इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन जो है साना बसाना सभी लोगों के साथ खड़ी है और उनका पूरा एकदम सहयोग करेगी कि जिससे जल्दी से जल्दी ये लोग अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट। सर, रिहैबिलिटेशन के लिए क्या कुछ किया जाएगा फिलहाल? देखिए, रिहैबिलिटेशन के लिए आपको पता है कि ये जो स्ट्रक्चर्स है, जब इन लोगों को यहीं पे रिकंस्ट्रक्शन रिनोवेशन करेंगे तो उसका जो प्रोसीजर के अंतर्गत इसको एक्सपेडाइट कराया जाए, डिस्कशन हो गया है बाकी एसोसिएशन से भी, वो अप्लाई करेंगे और उसमें इनको तुरंत जो है जो सोनामर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ मोहम्मद भट्ट ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज पेश आए आतिशबाजी वाक़े में करोड़ों रुपए के नुकसान हुए हैं। इन्होंने कहा है कि जैसे आग लगने की इत्तला मौसूल हुई, फायर अमले ने तेज तर कार्रवाई शुरू करते हुए आग पर काबू पाया। इस मौके पर मुकामी लोगों की जानिब से आग पर काबू पाने में ताउन करने का इन्होंने शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि आग इंतहाई शदीद नौइयत की थी, अगर बर वक्त काबू ना पाया जाता तो मजीद 40 ता 50 दुकानात आग की नज़र हो जाते थे। है कि इतना नुकसान हो गया, कुछ 46 स्ट्रक्चर जो आग की जद में आ गए और ऑलमोस्ट सारे कम्प्लीटली फुल्ली डैमेज्ड हैं। तो मुझे लगता है करोड़ों का नुकसान है। इसके अलावा जो भी कल जो ये वाक़ा कल रात शाम 6:30 बजे के करीब 6:15 बजे के करीब ये वाक़ा रोनुमा हुआ, और लेकिन बर वक्त कार्रवाई फायर सर्विस की या जितने भी डिपार्टमेंट्स रिलेटेड इससे हैं उनकी बर वक्त कार्रवाई से इसको आग पे काबू पाया गया। और सबसे बड़ी बात इसमें ये रही कि हमारी जो मशीनरी है, जो हमारे पास मशीनरी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास JCBs हैं। JCB हमने काम पे गए, वो ब्रेक चेन, असल में इसमें फायर गैप नहीं है, वो हमने एक चेन क्रिएट की, 1-2 दुकानों को हमने बीच में ये डिमोलिशन किया सो दैट कि फायर आगे ना बढ़े। लेकिन हम उसके बंदे की भी सराहना करते हैं जिसने वॉलंटियरली ये भी कह दिया आप मेरा दुकान गिरा लीजिए, तो उसकी हम बड़ी सराहना करते हैं कि उसने मतलब उस वक्त पे इतना मतलब डिसीजन लेके कम से कम और 40-50 दुकानों को बचा लिया। जैसा कि जानते ही आपके फायर सर्विस का जो इशू है, फायर सर्विस फ्रॉम द बिगनिंग है, 2004 में हमारी ये अथॉरिटी बनी है, 2004 से यहाँ पे फायर टेंडर ही नहीं है। ऑलमोस्ट 20 ईयर्स है ऑलरेडी elapsed, 20 साल हो गए, और मुझे भी यहाँ सिर्फ 5 महीने हो गए। 5 महीनों में भी क्या है कि मैंने 2-3 कॉरेस्पॉन्डेंसेज ऑलरेडी की है, मतलब फायर एंड एमरजेंसी सर्विस, जैसे कि ऑलरेडी मीटिंग में ये हमने लास्ट टाइम कुछ नवंबर में, शायद नवंबर-दिसंबर में एक मीटिंग भी की थी हमने डिविजनल डी साहब से, तो उसमें भी ये इशू उठा था फायर सर्विस का, और उन्होंने भी डायरेक्शन दे दी थी फायर सर्विस को, और साथ ही एमएलए साहब ने भी ये इशू उठाया था। और साथ ही हमने जब ये वाक़ा जब हमने ये फायर सर्विस का होना पर्टिकुलरली इस जगह पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इट्स अ फार ऑफ एरिया, क्योंकि तब तक टनल भी खुली नहीं थी। तो अगर ये टनल, ये कल शुक्र है अल्लाह का कि कल टनल खुली थी, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट कि गाड़ी जल्दी आप पहुँचे, अदरवाइज देयर वुड हैव बीन नॉट ए सिंगल शॉप इन द मार्केट। तो उस वजह से कि हम अल्लाह का शुक्र है। मगर साथ ही हम ये है कि हमने ऑलरेडी लिखा था इनको कि अब जो फायर टेंडर सर्विस का सिचुएशन जो वो सोनमर्ग में होना चाहिए था। तो इसमें उन्होंने भी, जो फायर सर्विस के जॉइंट डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने भी आगे लिखा है डायरेक्टर साहब को कि सीओ साहब जो कह रहे हैं कि वहाँ से फायर टेंडर होना ही चाहिए, तो बट उनके भी अपने कुछ लवाजमात होंगे, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट दे कुड नॉट डू इट।
एट द सेम टाइम बाय द टाइम जो हमने कोशिश की थी, एडी साहब से भी मेरी मुलाकात हुई थी इन बिटवीन नवंबर दिसंबर में भी, तो हम उनने कहा तो कुछ कमरे, मैंने उनको कमरे भी दिलवा दिए थे। इवन कि आप यू कैन कन्फर्म फ्रॉम द मार्केट, जो भी पौर मंडल का आपका यहाँ पे प्रेसिडेंट है, उस बेचारे ने भी 3 कमरे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इंतजामी तब्दीलियां लद्दाख से हमारे रिश्ते को मुतासिर नहीं कर सकती। लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के एक वफ्द ने आज श्रीनगर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। हिल काउंसिल के वफ्द ने लद्दाख और करगिल के तुलबा, मरीजों और दिगर अफराद के मसाइल को उजागर किया जो जम्मू कश्मीर में रिहाइश पजीर हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वफ्द की जानिब से पेश किए गए मसाइल की समाअत करते हुए कहा है कि वो लद्दाख इंतजामिया पर जोर देते हैं कि वो मुकामी अफसरान को जम्मू कश्मीर में भी तैनात करें ताकि अवाम को दरपेश मसाइल हल किए जा सकें। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इंतजामी तब्दीलियां लद्दाख से जम्मू कश्मीर के रिश्ते को मुतासिर नहीं कर सकती। इस मौके पर नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर के बशमूल सिविल इंतजामिया के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती को मुबैना तौर पर जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त नहीं दी गई। इल्तिजा मुफ्ती ने आज कठुआ में महलूक मक्खन उद्दीन के घर वालों से मुलाकात की और उन्हें ताज़ियत पेश की। ताहम जम्मू वापसी के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती थीं, जिन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी गई। इल्तिजा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त न मिलने पर सख्त एहतजाज दर्ज करवाया। इन्होंने कहा है कि वो महलूक मक्खन उद्दीन के घर वालों से मुलाकात के लिए श्रीनगर से कठुआ जाना चाहती थीं, लेकिन उन्हें छुपकर चोरों की तरह निकलना पड़ा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती थीं, लेकिन इसकी इजाज़त नहीं दी गई। इन्होंने उमर अब्दुल्ला पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि वो कठुआ का दौरा करें और मुतासरा खानदान से मुलाकात करें। इन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि आखिर SHO बिलावल को ताहाल मुअत्तल क्यों नहीं किया गया। मैं रात में भागी हूँ, फिर सुबह 6 बजे मैं कठुआ के लिए निकली। उसके बाद जब मैं यहाँ 3 बजे पहुंची सर्किट हाउस में, यहाँ पुलिस आई, मुझे बेसिकली बोला गया आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करिए। जब मैंने मना किया, आप नतीजा आगे देख रहे, दे डिटेन्ड मी। बट मैं यहाँ की सरकार से भी पूछना चाहती हूँ, NC गवर्नमेंट से, आपको लोगों ने इतनी भारी अक्सरियत से वोट दिया, ये किस लिए आपको वोट मिला? ताकि आप फुटबॉल खेलें, कहें कि पुलिस इज नॉट अंडर अस। आपकी प्रायोरिटीज क्या है? द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर शुड हैव विजिटेड कठुआ at least once. Instead, they're hosting lunches in Delhi. What is this? There's no sense of responsibility. There's no sense of accountability. It's highly irresponsible. And I don't say that everybody in the police is bad. There are some black sheep, जैसे SHO बिलावर के हैं, उनको टर्मिनेट क्यों नहीं किया जा रहा? वो वहाँ एक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं, वहाँ के लोगों में दहशत फैला रहे हैं, उनके अगेंस्ट क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा? मैम, उसके ऊपर भी पुलिस ने क्लैरिफाई किया था, जब वो इंसिडेंट पूरा हुआ उसके ऊपर भी उन्होंने क्लैरिफाई किया। जी, क्या क्लैरिफाई किया? मैम, उन्होंने उसके ऊपर एक जो है इंक्वायरी कमेटी भी बिठाई। तो मुझे बताइए, चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों? जुडिशियल क्यों नहीं मान रहे? We are asking for a judicial inquiry. If the police is so confident about their version, let there be an impartial, neutral judicial inquiry into the matter in the High Court. The family is also demanding a judicial inquiry by a retired High Court judge. There is nothing wrong. This is a democracy. ये तो जमहूरियत है. हमारा हक है चीजें मांगना, हमारा हक है अपने आप को एक्सप्रेस करना. आप देखिए कैसे मुझे बकरी की तरह यहाँ पे बांध के रखा है, मुझे मैन हैंडल तक कर रहे थे. तो क्यों मैं यहाँ क्या करने आई हूँ? क्या मैं यहाँ कुछ गलत कर रही हूँ? खुदा ना खास्ता, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. फैमिली ने वहाँ ये क्लेम किया है कि बिलावर में दहशत है, और वो दहशत किसी मिलिटेंट की नहीं है. वहाँ के जो SHO है वो छोटे छोटे लड़कों को उठा के पैसे को एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, और जब उनको पैसे नहीं मिलते वो उन लड़कों पे टॉर्चर करके उन पे फेक मिलिटेंट केसेस डालते हैं. दिस इज व्हाट. हाँ, आप भी जाइए, बिलावर जाइए. आप क्यों नहीं जाके वहाँ फैमिली से बात कर रहे हैं? आप तो जा सकते हैं. मैम, ये जो सब कुछ आपके साथ हो रहा है, क्या ये डेमोक्रेसी में होना चाहिए? तारिक हमीद कर्रा ने उमर अब्दुल्ला हुकूमत के बशमूल तमाम अहम ख्याल सियासी पार्टियों पर जोर दिया कि अवामी मसाइल के हल के लिए एक मुस्बित रोल अदा करें. सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर तारिक हमीद कर्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी के मुख्तलिफ सतही इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं.
इन इजलासों में पार्टी के ज़िले कायदीन ने शिरकत की। इन इजलासों में आवाम तक रसाई और उनके मसाइल के हल के लिए गौर व खौस करना था। तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि आवाम की जानिब से इन दिनों शिकायत मौसूल हो रही है। लोगों का कहना है कि इन्होंने इंतखाबात में इस उम्मीद के साथ वोट दिया था ताकि हमारे नुमाइंदे मसाइल हल किए जाएंगे, लेकिन इसके बरक्स हमारे मसाइल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 2 दिनों से यहाँ पे हमारी तंजीमी मीटिंगें हो रही थी डिस्ट्रिक्ट वाइज, और पूरी 10 डिस्ट्रिक्ट्स के हमने यहाँ पे मीटिंग्स की। ये फॉलो अप मीटिंग्स थी जो हमने पहले 10 दिसंबर को यहाँ पे मीटिंग्स करके अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स वगैरह को जो हिदायत दी थी। उसके बाद में आज सीनियर लीडर्स की ये सारी मीटिंग थी, डिस्ट्रिक्ट के जो सीनियर लीडर्स हैं। एक तो हमने उनको जो तंजीमी हिदायतें दी एक रीच आउट प्रोग्राम के वास्ते, और पार्टी लेवल पे डिफरेंट जो टायर्स हैं उनको कैसे हम फिल करें और मोर इफेक्टिवली कैसे हम लोगों तक जाएं और लोगों की बातों को कैसे हम उजागर करें। एक तो वो पहलू था, और दूसरा उसमें एक पहलू जो उजागर होके आया, अभी तक भी फैसला ना होना। दूसरा जो कि कांग्रेस पार्टी का पहले दिन से स्टैंड रहा है कि स्टेटहुड बहाल की जानी चाहिए। हम बार बार इस पे यादा करते हैं, रीइटरेट करते हैं कि स्टेटहुड जो है इट इज इम्परेटिव। अगर आप यहां चाहते हैं कि जो सिस्टम जिसके वास्ते इलेक्शंस लड़े गए, जिन बुनियादों पे लड़े गए, उनको अगर लोगों तक पहुंचाना है तो उसके वास्ते स्टेटहुड का रेस्टोर होना बहुत जरूरी है, लाजमी है। तो एक सिनिसिज्म लोगों में पैदा हो रहा है। मैंने पहले भी कहा कि खदशात हैं कि लोग कल को इस सिस्टम को रेस्टोर जो किया है, डेमोक्रेटिक सिस्टम, उस पे से जो एतबार होता है वो एतबार उठना नहीं चाहिए। अब इसमें 2 एंगल्स आते हैं। एक एंगल ये है आया कि कहीं किसी दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत पर जम्मू कश्मीर में भाजपा के हलकों में जश्न मनाया जा रहा है। श्रीनगर में मुनक्किदा इजलास में शिरकत के मौके पर जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि दहली के नताइज ने यह साफ कर दिया है कि मुल्क की आवाम बीजेपी के साथ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म है और 25 दिसंबर 2025 को उनके 100 साल जन्म के पूरे हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे साल भर में अटल जी के व्यक्तित्व को, अटल जी की पर्सनैलिटी को, अटल जी ने ऑर्गेनाइजेशन को जिस प्रकार से खड़ा किया है, अटल जी के कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी है, उनको याद कर रही हैं। और उनके साथ अगर किसी ने काम किया हो उनको भी सम्मान कर रही है। उनके साथ जिन्होंने काम किया हो उसके एक्सपीरियंसेस सबको सुना रहे हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनता पार्टी के रिजीम में विदेश मंत्री के नाते और 3 बार फिर देश के प्रधानमंत्री के नाते जो उन्होंने काम किया। केजरीवाल की सरकार जो थी वहां पर उन्होंने 10 सालों में जो वहां पर करप्शन, बहुत सारे स्कैंडल, शराब का स्कैंडल, दूसरे दारू, पता नहीं क्या क्या स्कैंडल किए थे वहां पर, उसका नतीजा है उसका। लोगों ने वहां चुना है कि डबल इंजन की सरकार आनी चाहिए और अब आ गई है डबल इंजन सरकार। अब आप देख लीजिए कि वहां पर कितनी डेवलपमेंट होगी।
دلی میں. دلی کا جو کہ عوام تھا وہ ترہمام کر رہا تھا. دلی کا عوام جو تھا وہ بڑا ناخوش تھا. دلی کا عوام پریشان تھا. انہوں نے اس پریشانی کو ختم کیا ہے. لوگوں نے ووٹ دے کر بھارتیہ جنتا پارٹی کو کامیاب کیا ہے اور یہ 2/3 بہمت کے ساتھ وہ آگے ہے. آپ دیکھ لیجئے آنے والے دنوں میں کتنی اچھی طرح سے بھارتیہ جنتا پارٹی وہاں حکومت بنائے گی اور لوگوں کے کام کریں گی. میروائز عمر فاروق نے جیل میں محروس انجینئر رشید کی بگڑتی صحت پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ سخت رویے کے ذریعے کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا. میروائز عمر فاروق نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کی منتخبہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے انتخابی منشور میں کیے گئے وعدوں کی تکمیل کرے. بالخصوص جیلوں میں بند کشمیری قیدیوں کی رہائی کے لیے اقدامات کیے جائیں. تہاڑ جیل میں NIA کے مقدمے کا سامنا کرنے والے قیدیوں سے فون کی سہولت ختم کر دیے جانے پر بھی میروائز نے اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا. میروائز نے حکومت ہند سے مطالبہ کیا کہ تمام سیاسی قیدیوں کی بنیادی حقوق کی پاسداری کی جائے. PDP سربراہ محبوبہ مفتی کے قافلے کی ایک گاڑی بارہمولہ کے ہدا پور دیہات میں حادثے سے دوچار ہو گئی جس میں 3 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے. تفصیلات کے مطابق محبوبہ مفتی کے قافلہ کی بلیرو کار سڑک سے پھسل کر جھاڑیوں میں پلٹ گئی جس کے نتیجے میں 3 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا. پولیس اہلکاروں کی حالت مستحکم بتائی گئی ہے. جموں کشمیر میں فون سم کارڈز کے مبینہ غلط استعمال کے خلاف پولیس کی جانب سے کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے. سری نگر، گاندربل، اننت ناگ، بڈگام، پلوامہ، شوپیاں، بانڈی پورہ، سامبا اور کشتواڑ میں پولیس کی جانب سے بڑے پیمانے پر کارروائیاں انجام دی گئی. پولیس ٹیموں نے سم کارڈ فروخت کرنے والے دکانداروں کو اس بات پر پابند کیا کہ وہ سم کارڈ کی اجرائی کے لیے طے شدہ قواعد پر عمل کریں. کسی بھی طرح کی لاپرواہی کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. واضح سم کارڈ کے عسکریت پسندوں کی جانب سے غلط استعمال سے متعلق سامنے آنے والی رپورٹس کے بعد پولیس نے کریک ڈاؤن شروع کیا ہے. معاشرے کو جہاں نشے کی لت تباہی سے دوچار کر رہی ہے وہیں عصر حاضر کی نئی سہولت ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی نوجوانوں کو ڈیجیٹل ایڈکشن میں مبتلا کر چکا ہے. نوجوانوں کو انٹرنیٹ، ویڈیو گیمز، آن لائن گیمنگ، سوشل میڈیا، ای شاپنگ، ڈیجیٹل عریانیت کے جال میں پھنسنے سے روکنے کے لیے سری نگر میں ایک شعور بیداری پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا. امر سنگھ کلب میں اس پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا جس کو سینئر ایڈوکیٹ ظفر احمد شاہ، ڈاکٹر مشتاق مرغوب کے بشمول ماہرین تعلیم، سماجی جہدکاروں نے مخاطب کیا. This is the third conversation of our program, Common Interest Conversations. تو ٹاپک ہمارا تھا بیسکلی ڈیجیٹل ایڈکشن. تو اس پہ انیشلی جو 2 سیشنز کیے تھے اس میں ہمیں لگا کہ نہیں، چونکہ ایجوکیشن سیکٹر از ویری امپورٹنٹ، تو ایجوکیشن سیکٹر پہ ایک سیپریٹ پروگرام ہو، ایک سیپریٹ انٹریکشن ہو اس کے اسٹیک ہولڈرز سے. تو اس میں ہم نے دعوت دی ہے کئی لوگوں کو. ظفر صاحب ہی کر رہے ہیں اس میں ہیڈ، ظفر شاہ صاحب، اینڈ باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں. وی ہیو پروفیسرز، وی ہیو ریپرزینٹیٹیوز فرام دا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ٹیچرز ہیں، سیکریٹرسٹ ہیں، ڈاکٹر مرغوب صاحب ہیں، ریناؤنڈ سیکریٹرسٹ کشمیر کے. سو وی جسٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آج بچوں کو کیا دقت آ رہی ہے، اتنا جو اوور لوڈ ہو رہا ہے، ڈیجیٹل اوور کنزپشن جو ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے اس کے کیا کیا نتائج نکل رہے ہیں اس کو ہم تھوڑا ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ چونکہ اب دنیا ہی ڈیجیٹل ورلڈ میں ہم جی رہے ہیں تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ٹیکنالوجی کو ہم یوز کریں، اور اس کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ بچوں کو سمجھ آنا چاہیے خود ہی کہ یہ کتنا ہارمفل ہے ان کے لیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ فزیکل کتنی پرابلمز ہو رہی ہے، مینٹل پرابلمز کتنی ہو رہی ہیں بچوں کو، ان کی کریٹیوٹی ختم ہو رہی ہے،
उनका जो सारा खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं बची उनको। तो ये चीज़ें हम कैसे पहले खुद समझें और फिर कोशिश करेंगे जहाँ पे पॉसिबल हो इसमें रिड्यूस करें उनकी जो एक हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू टेक देम टुवर्ड्स हेल्दी कंजप्शन। पुंछ के जनियार दंगला इलाके में वाक़ मदरसे फातिमतुज़-ज़हरा में दीनी तालीम की तकमील करने वाले तलबा की दस्तारबंदियाँ की गईं। इस मौके पर एक जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया। फातिमतुज़-ज़हरा में सालाना मीटिंग की जो हमारे हर साल जामिया फातिमतुज़-ज़हरा मदरसे में सालाना जलसा दस्तारबंदी रिदाए किरात से होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल इन लोगों को खुशखबरी ये है और पूरे पुंछ के लिए खुशखबरी है, जामिया फातिमतुज़-ज़हरा वो मदरसा बन चुका है जिसमें जम्मू कश्मीर में आज तक कोई आलमा फाज़ला नहीं हुई। तो ये आप लोगों की देन है और इन लोगों का, मेरे बच्चों के वारसों का इनके साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये वक्त आ गया कि जामिया फातिमतुज़-ज़हरा से इस साल 9 आलमा फाज़ला फारग हो रही हैं, जो हमारे ज़िला पुंछ के अलावा करगिल की बच्ची भी हैं, उनमें से 9 फारग होने वाले से फारग जो करेंगी हासिल करेंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल वो 9 होंगी। दूसरा रिदाए किरात से 18 बच्ची होंगी। तो हमने सब ने मशवरा किया कि इस साल अभी छोटे दिन भी हैं, जलसा इतना बड़ा हो नहीं सकता है, तो हमने ये सब ने तय किया। पहले कमेटी से हमने तय किया, कमेटी के बाद हमारे भाइयों से मैंने आज इनसे मशवरा करके बोल दिया, हमने मई जो अप्रैल के लास्ट में या मई के शुरू हफ्ते में जलसा कराएंगे। जो 2 दिन का जलसा होगा इंशाल्लाह, और 2 दिन का जलसा होगा उसमें रिदाए किरात और आलमा फाज़ा जो फारग होंगी उस जलसे में फारग किया जाएंगी। और उन सोनामर्ग आखिर में सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। सोनामर्ग में पेश आए आतिशबाजी वाक़े पर वज़ीर आला का इज़हार अफसोस, ताजरीन को हर मुमकिन ताउन फराहम करने का दिलाया तयक़्क़ुद। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने किया सोनामर्ग का दौरा, आतिशबाजी से मुतासरा ताजरीन से की मुलाकात, कहा मुआवजा अदायगी के लिए लिया जाएगा जल्द फैसला। इंतजामी तब्दीलियां लद्दाख से जम्मू कश्मीर के रिश्ते को मुतासिर नहीं कर सकती, लद्दाखी वफ़द से मुलाकात के दौरान वज़ीर आला ने किया इज़हार यकजहती। इल्तिजा मुफ्ती ने कठवा में महलूक नौजवान के घर वालों से की मुलाकात, SHO बिलावड़ को मुअत्तल करने का किया मुतालबा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत न मिलने पर किया एहतजाज। अवामी मसाइल हल करने दी जाए तवज्जो, हुकूमत से तारिक हमीद कर्रा का मुतालबा, प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया मुखातिब। दहली के नताइज ने साफ कर दिया है कि मुल्क की अवाम भाजपा के साथ है। अशोक कौल का दावा, श्रीनगर में बीजेपी के इजलास में की शिरकत। कश्मीरियों के साथ सख्त रवैये से कुछ हासिल नहीं होगा, जेल में इंजीनियर रशीद की बिगड़ती सेहत पर मीरवाइज उमर फारूक का रद्द अमल। और बारामूला के खुदापुर देहात में महबूबा मुफ्ती के काफिले की गाड़ी हादसे से 2 4, 3 पुलिस एहलकार हुए जख्मी। इसी के साथ 4TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंची, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।